Good morning, students. How are you? So in last lecture, we learned about multiplication of integers. Today, we will see what properties hold true for the multiplication of integers. Let's begin. Properties of multiplication of integers. First property, closure under multiplications. आपने ये सब प्रॉपर्टीज होल नंबर्स में भी पढ़ी थी, है ना? होल नंबर जब 6th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब यही प्रॉपर्टीज इंटीजर्स में भी फॉलो होती है, वो हमें देखना है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. See, -20 multiplied by -5. Here, two negative integers are there. है ना? When we multiply 20 by 5, the 25 is 100. My product is positive. मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था, जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आता है वो पॉजिटिव हो जाता है. तो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर. यस, इट इज इंटीजर. सेकेंड एग्जाम्पल, -15 multiply by 17. So your answer is -255. Why? Because one integer is negative and one is positive. So my product is negative integer. But it is integer ना, product is an integer. Here 4 columns are given. ये आपको खुद से करना है. और आप देखोगे जैसे यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो योर प्रोडक्ट इज नेगेटिव इंटीजर, वो भी एक इंटीजर आएगा. ये दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूंगी, माय प्रोडक्ट इज positive, so it means product is an integer. Here also both integers are negative. When we multiply these two negative integers, my product is positive, it is also an integer. And this is one positive, one negative. When we multiply these two integers, my product is negative. है ना? ये आपको मैं PDF भेजा है, उसमें देखना, ये fill in the blanks है, ये आपको खुद से अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में फिल करना है मल्टीप्लाई करके. इट मीन्स इन्फ्रेंस क्या निकला, जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर. What do you observe? Can you find a pair of integers whose product is not an integer? क्या आपने देखा जो भी आपको यहाँ प्रोडक्ट मिला, क्या वो इंटीजर नहीं था? No. This gives us an idea that the product of two integers is again an integers. तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि जो भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी एक इंटीजर आ रहा है. सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. इन जनरल, a multiplied by b is an integer for all integers a and b. It means कोई भी दो integers लूं मैं, a और b, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो भी इंटीजर ही होगा. समझ में आया? The product of any two integers is always an integers. So we say that integers are close under multiplication. ये प्रॉपर्टी समझ में आई? What is closure under multiplication? What is this property? It means when we multiply two integers, our product is always an integer. It means the product of any two integers is always close under. It means always an integer, so we say that the integers are close under multiplication. Okay, next property. Commutativity of multiplication. We know that multiplication is commutative for whole numbers. Can we say whole numbers में आपने देखा था a मल्टीप्लाई बाय b करूं या b मल्टीप्लाई बाय a करूं, किसी भी दो होल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी ऑर्डर में, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. Is this possible in integers? See, in this property we know that multiplication is commutative for whole numbers. Can we say multiplication is also commutative for integers? Observe the following tables and complete it. See, one question is one statement. This is 3 multiplied by -4 is equal to -12. 3 4s are 12. Again, this is positive integer. This is negative integer. When we multiply a positive integer with negative integer, my product is negative integers. अब मैंने चेंज कर दिया,
3 मल्टीप्लाई बाई 4 की जगह पे -4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो अगेन माई आंसर इज -12. इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3. प्रोडक्ट इज ऑलवेज -12, है ना. प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया. अभी ये आपको खुद से करने हैं जो दिए हुए हैं. देखो -30 मल्टीप्लाई बाई 12, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है, और 12 मल्टीप्लाई बाई -30 करोगे तो क्या आंसर आता है. देखो -30 मल्टीप्लाई बाई 12, आंसर इज -360, और 12 मल्टीप्लाई बाई -30, इट इज ऑल्सो -360. इट मीन्स -30 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई -30. सी इन दिस क्वेश्चन, -15 मल्टीप्लाई बाई -10, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं. दो नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो माय प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. 15 10s are 150. अब उसको मैंने कर दिया -10 मल्टीप्लाई बाई -50, तो भी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया. 150 इज आंसर. इट मींस दिस इक्वल टू दिस. ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक है तो उसमें फिल करनी है खुद से, ठीक है. -35 मल्टीप्लाई बाई -12, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. 35 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है 420. ओके, अब -12 मल्टीप्लाई बाई -35 करूं तो भी आंसर इज 420. इट मींस दिस इक्वल टू दिस. नाउ दिस इज -17 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर इज 0. अब अगर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 0 मल्टीप्लाई बाई -17, तो भी आंसर इज 0. इट मींस दिस इक्वल टू दिस. इन दिस here one statement is given, -1 मल्टीप्लाई बाई -15, तो यहाँ पे क्या आएगा, -15 मल्टीप्लाई बाई -1 is equal to answer is 15. Why? Because both the integers are negative. So when we multiply two negative integers, product is positive. So 15 ones are 15. So here statement is given -1 multiply by -15. So here you write -15 multiply by -1 and answer is 15. Okay, it means क्या इन्फरेंस निकलेगा कि this equal to this. So what are your observations? क्या आप ऑब्जर्व करोगे? The above examples suggest multiplication is commutative for integers. It means जैसे whole number में हमने पढ़ा था कि a multiply by b करूं या b multiply by a करूं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है. Same thing is happen in integers also. Okay, so the product of any two integers taken in any order remains the same. So we say that multiplication is commutative for integers. It means किसी भी two integers का अगर मैं किसी भी order में multiply करूं तो उसके product में change नहीं होता है. It means we can say that multiplication is commutative for integers. Okay. Now next property देखेंगे अभी. Multiplication by 0. We know multiplication by 0. We know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. ये आपको हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तब से बताया जाता है. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0. These are obtained from the patterns done earlier. See, -3 multiplied by 0, answer is 0. 0 multiplied by -4, answer is product is 0. -5 multiplied by 0 करूंगी तो आंसर is product is 0, and 0 multiplied by -6, product is 0. This shows that the product of a negative integer and 0 is 0. In general, for any integers a multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by a is equal to 0. फिर वो कुछ भी हो, 0 मल्टीप्लाई बाई ए करो या a मल्टीप्लाई बाई 0 करो, प्रोडक्ट इज 0. ओके, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्रोडक्ट इज 0. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय 0. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. We know that 1 is the multiplicative identity for whole number. What is the meaning of this line? When we multiply any whole number by 1, product is always number itself. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, वो नंबर खुद से आता है. Check that 1 is the multiplicative. This property is called multiplicative identity. इसे हम बोलते हैं multiplicative
आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स में भी होती है क्या, ये हम देखेंगे। सी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर्स विद 1, -3 multiply by 1. Our product is -3. Why? This is negative, this is positive, product is negative. 1 multiply by 5, so 1 5s are 5. -4 multiply by 1 क्या होगा, -4 है ना, -4 1s are -4. This shows that 1 is the multiplicative identity for integers also. इसका मतलब जैसे whole number में multiplicative identity होती है, वैसे ही integers में भी multiplicative identity होती है. In general, for any integer, we have a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a. Product is a. a कोई integer है, उसे 1 से multiply करूं या 1 को किसी integer से multiply करूं, product is this integer. What happens when we multiply any integers with -1? अब ये देखना है, अगर हम 1 से करेंगे तो हमको वही इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगर हम -1 से करते हैं तब क्या होता है। सी, -3 मल्टीप्लाई बाई -1। अब मैंने क्या बताया था, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और ये -3 है, तो 3 1 जा 3, प्रोडक्ट क्या आया मेरा, पॉजिटिव। यहाँ था 3 मल्टीप्लाई बाई -1, अब ये पॉजिटिव था, -1 से किया तो प्रोडक्ट क्या आया, -3, है ना, नेगेटिव इंटीजर आया। अब यहाँ -6 मल्टीप्लाई बाई -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इज प्लस, तो क्या आया 6। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन वी से -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो आपको इससे क्या लग रहा है, क्या -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, नो, -1 is not a multiplicative identity. Multiplicative identity क्या होती है, when any integer is multiplied by 1, the product is the same integer. किसी भी इंटीजर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उसका प्रोडक्ट वो सेम इंटीजर मिलना चाहिए। -1 में ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट तो 3 हो गया, जबकि किससे मल्टीप्लाई कर रही थी मैं, -3 से, है ना। यहाँ मैं -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो प्रोडक्ट 3 आना चाहिए था, पर क्या आया, -3 आया। तो इट मीन्स वी कैन नॉट से -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, when any integer is multiplied by 1, the product is the same integer. It means 1 is the multiplicative identity for integers. 1 जो है, only 1 is the multiplicative identity for integers. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है। कंसीडर्ड -3, -2 एंड 5, 3 इंटीजर्स को कंसीडर किया मैंने, ठीक है। 3 इंटीजर्स मैंने लिए, -3, -2 एंड 5। लुक एट -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई, अब मैंने तो ग्रुप बना दिया, 3 इंटीजर्स मैंने लिए थे, अब उन 3 इंटीजर्स को मैंने क्या किया, पहले -3 और -2 को मल्टीप्लाई किया और -5 को बाद में किया, और दूसरा ग्रुप बनाया एंड -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 5। इट मीन्स एक ग्रुप में -3 -2 को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेकेंड ग्रुप में -2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगी। इन द फर्स्ट केस -3 and -2 are grouped together, and in the second -2 and 5 are grouped together, है ना। 3 इंटीजर्स मैंने लिए थे, उन 3 इंटीजर्स में से पहले वाले इसमें मैंने -3 और -2 का एक ग्रुप बनाया है, और सेकंड वाले में -2 और 5 का एक ग्रुप बनाया है। We see that -3 multiplied by -2 multiplied by 5 is equal to, अब देखो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो 3 2 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पहले -2 और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। 5 2 10, तो -10 आया, है ना।
-10, और ये क्या था, जो इंटीजर था पहला -3, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा 30। तो आपने क्या देखा, सो वी गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस। जब मैंने इन दो का ग्रुप बनाया पहले तो भी मेरा आंसर 30 आया, फिर मैंने -2 और 5 का ग्रुप पहले बनाया तो भी मेरा आंसर क्या आया 30 आया। तो 10 -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। ये 3 इंटीजर्स मैंने लिए थे, उनके मैंने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में -3 -2 को मल्टीप्लाई किया पहले, फिर उसके प्रोडक्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया, और एक दूसरे में मैंने -2 मल्टीप्लाई बाई 5 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जो प्रोडक्ट आया उसको -3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लुक एट दिस एंड कंप्लीट द प्रोडक्ट। Now take this 7 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, लुक एट दिस, कंप्लीट दिस प्रोडक्ट। तो आंसर इज 7 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 1 इंटीजर इज पॉजिटिव एंड 1 इंटीजर इज नेगेटिव। तो 7 6 are 42 and my product is negative 42. So 42 multiplied by 4 is equal to 16 and minus. So -42 multiplied by 4. See, पहले first we multiply this two integer, one positive and one negative. 7 6 are 42. तो जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। दिस इज -42 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -168। अब हमने ग्रुप किया -6 और -4 को। अब हम 7 मल्टी, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 4 जा -42 आंसर आएगा, है ना। -42, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -42 करेंगे तो आंसर इज -168। तो क्या आया दोनों को, देखो इसमें हमने क्या ग्रुप किया था, 7 और -6 को एक ग्रुप ले लिया था और उसके प्रोडक्ट को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। हाँ सॉरी, यहाँ पे 24 आएगा बेटा, इतना रॉन्ग हो गया। और दूसरे हमने -6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज -24, क्योंकि 1 is negative integer, 1 is positive integer, -24. So 7 multiplied by -24 is equal to -168. -168 is 7 multiplied by -6 multiplied by 4 is equal to 7 multiplied by -6 multiplied by 4. In general, for any three integers a, b and c, a multiply c multiply by a multiply by b, मतलब हमने 3 इंटीजर्स लिए थे a, b और c। तो पहले मैं a मल्टीप्लाई बाई b करूं, उसको फिर c से मल्टीप्लाई करूं, या b मल्टीप्लाई बाई c करूं, उसको a से मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स। ग्रुपिंग के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, next is distributive property. We know 16 multiplied by 10 plus 2 is equal to 16 multiplied by 10 plus 16 multiplied by 2. Distributivity of multiplication over addition. ये आपने 6th standard में पढ़ा था। ठीक है, a multiply by b plus c। अगर इस तरीका हो तो इसका मतलब a multiply by b plus a multiply by c। ये हम उसको खोल देते थे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में ऐड है, 10 plus 2 है
है ना, ये 6 में सिखाया था ना मैंने, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c हो, तो a मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो लेट अस चेक इफ दिस इज ट्रू फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। अब हम ये देखेंगे क्या ये इंटीजर्स में भी ट्रू होता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब ये देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, है ना, तो इज इक्वल टू -2, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8, 8 2 16, -16। इसका प्रोडक्ट क्या आता है, -16। अब इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। अब इन दोनों को 3 2 6, -6 प्लस 5 2 10, -10। अब दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे 6 से, और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो क्या आंसर आया, -16। देखा आपने जब मैंने उसको डायरेक्टली कैलकुलेट किया, क्या क्वेश्चन था, सी -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 था। तो अगर डायरेक्टली मैं इसको करूँ तो 5 प्लस 3 हो जाता है 8, और -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू -16। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन से मैंने किया, तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ ये, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व किया पहले, तो 3 2 6, -6 प्लस 5 2 10, -10। और माइनस माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है, साइन किसका रहता है, माइनस का। तो -16 इज द आंसर। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 7। ठीक है, अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -5 -7 -2 5, 4 5 20, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर -20। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से करूं तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 7, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, -28, है ना। अब बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 8 -28 हो जाएगा, आंसर इज -20। तो सी यहाँ भी -20 आया था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, product is same, -20. It means -4 multiplied by -2 plus 7 is equal to -4 multiplied by -2 plus -4 multiplied by 7. अब थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक -8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है -2 प्लस -1। अगर मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूं तो -2 बाहर प्लस का साइन है, इनर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 2 + 1 3, -3 हो गया। अब -8 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा 24। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से करूं तो -8 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय -1, देखो, है ना। अब ये दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 प्लस दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 8, 16 + 8 24। So can we say that the distributivity of multiplication over addition is true for integer also? Yes, in general for any integers a, b and c, a multiplied by b plus c is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c. ये हमने किस में देखा, ओवर एडिशन देखा, एडिशन में देखा, है ना। अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसको देखो, कैन वी से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 8 is equal to 4 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 8? क्या ये हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या था, a multiplied by b plus c देखा हमने, अब हम देख रहे हैं a multiplied by b minus c। तो 4 को मल्टीप्लाई किया पहले 3 से, 4 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 8। so 4, let us check, 4 multiplied by, अब यहाँ पे आपने देखा 3 minus a है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो 8 - 3 कितना हो गया, 5 माइनस का, और 4 5 20, -20। नॉर्मली हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है, -20।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। 4 3 जा 12 माइनस 4 8 जा 32, 12 माइनस 32 20, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 माइनस 12 आंसर 20, पर साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 32 इज ग्रेटर देन 12। तो आपने क्या देखा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। लुक एट द फॉलोइंग, मतलब कहने का मतलब है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी हो या a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होती है। लुक एट द फॉलोइंग, सी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस माइनस 6 है ना। अब ये एक है तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, नॉर्मली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ 4 माइनस 4 है, यहाँ बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करूंगी तो साइन विल चेंज, ये माइनस 6 क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस 4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 4 2 आंसर आएगा पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज नेगेटिव इंटीजर, 5 2 10, आंसर इज माइनस 10। अब according to the property minus 5 multiply by minus 4 minus minus 5 multiply by minus 6 किया। अब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 माइनस 5 6 जा 30, तो 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। So minus 5 multiply by minus 4 minus minus 6 is equal to minus 4 multiply by minus 4 minus minus 5 multiply by minus 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। फाइंड दैट दीज आर आल्सो इक्वल इन जनरल फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a, b and c, a multiply by b minus c is equal to a multiply by b minus a multiply by c। मतलब एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 18 पर ट्राई दिस दिए हुए हैं, देखो उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, कि ये जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस 2 इज दिस इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? अब हमें पहले हम, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड दिस इज राइट हैंड साइड, फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस 2। ओके, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आउटसाइड प्लस साइन इज देयर, तो इनर साइन विल नॉट चेंज, दिस इज सेम माइनस 2 है ना। तो 6 माइनस 2 क्या होता है? 4, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या आया? 40। राइट हैंड साइड लेंगे, अभी राइट हैंड साइड में क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो 10 6 जा 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 क्या होगा? 10 2 जा 20, प्रोडक्ट इज नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आएगा माइनस 20। अब बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 20 एज इट इज रहा। नाउ 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है बेटा आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें यही सॉल्व करना था कि दिस इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड, देन वी सॉल्व दिस राइट हैंड साइड, और हमने क्या देखा? दोनों का आंसर सेम आया। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ सेकंड क्वेश्चन is minus 15 multiply by minus 7 plus minus 1. This is our left hand side. First we take left hand side. So minus 15 multiply by minus 7 plus minus 1 is equal to minus 15 से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ minus 7 है बाहर प्लस है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ, minus 1 एज इट इज रहा, तो minus 7 minus 1, अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए? नेगेटिव, तो प्लस हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा? माइनस का। सी माइनस 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 8 माइनस 8, सो माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 8। अब दोनों इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो 15 8 जा 120। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। अब हमने दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो 15 7 जा 105 पॉजिटिव प्लस
दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज सेम, 15 1 जा 15, 105 प्लस 15 इज इक्वल टू 120। तो दोनों को सॉल्व करने पे दोनों का प्रोडक्ट सेम आया। सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो दोनों का सेम हो गया है ना। अब नेक्स्ट, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। मल्टीप्लिकेशन को इजियर कैसे बनाते हैं? सी, कंसीडर द फॉलोइंग, वी कैन फाइंड -25 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 4। तीन ये इंटीजर्स हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एस -25 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 25 और 37 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -925 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज -3700। ठीक है, और वी कैन डू इन दिस वे। ये दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया। देखो तीन इंटीजर्स है, -25 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले क्या किया है, -25 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आंसर आया -925, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज -3700। दूसरे तरीके से उन्होंने क्या किया, -25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 37 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो -25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 4 जा 100, -100 मल्टीप्लाई बाय 37, तो प्रोडक्ट इज -3700। तो कौन सा वे आपको इजियर लगा? विच इज द इजियर वे, दिस कि दिस? यहाँ पे ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा आपको, है ना, और यहाँ पे खाली ऑर्डर चेंज कर देने पे इजीली हो गया। 25 4 जा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 37, 37 1 जा 37 और 2 0 ऐसे लग गए। तो विच इज द इजियर वे? Obviously the second way is easier because multiplication of -25 and 4 gives -100, which is easier to multiply with 37, है ना। यहाँ पे 25 4 जा 100 हो गया, अब 37 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 लगा दिया, तो this way is easiest. Note that the second way involves commutativity and associativity of integers. दो प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें, मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करो, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो हमने यहाँ फॉलो किया। बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया और 25 4 जा 100 आया, 100 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इजीली वो वे। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने मल्टीप्लिकेशन को इजियर बना सकते हैं। ठीक है, so we find that the commutativity, associativity and distributivity of integers help to make our calculation simple. ये प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपने मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं। Let us further see how calculations can be made easier using these properties. अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 16 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है हमने, तो क्या किया, 12 को हमने 10 + 2 लिख सकते हैं ना। अब ये क्या बन गया, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी। तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c करो, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 10 जा 160 प्लस 16 2 जा 32, 160 प्लस 32 192। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इन सेकंड क्वेश्चन -23 मल्टीप्लाई बाई 48। अब क्या किया, 48 को मैं 50 - 2 लिख सकती हूँ, है ना। 50 में से 2 माइनस किया तो 48 ही बचते ना। 48 की जगह मैंने लिख दिया 50 - 2। अब ये क्या बन गया, a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी। तो ये क्या कर जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी। -23 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस -23 मल्टीप्लाई बाई 2। अब -23 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 1 0 तो एज इट इज आएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो ये हो गया -1150 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -46। तो दिस इज माइनस। अब यहाँ आउटसाइड माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइड प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस, तो -1104 इज द आंसर। मतलब ये प्लस हो जाएगा ना, +46। तो एक माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1150 से 46 को माइनस किया तो आंसर इज 1104। तो इजीली सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे -35 मल्टीप्लाई बाई -98। अब -98 को उन्होंने क्या लिखा,
-100 + 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 100 में से 2 माइनस गए तो 98 बचे, तो 98 को उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी यूज किया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, तो सॉल्व हो गया, इजिली आंसर आ गया 3430। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 52 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस -52, मतलब 2 -52 मल्टीप्लाई बाय 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 52 मल्टीप्लाई बाय -2। तो इस तरीके से हम इजीली ये प्रॉपर्टीज को यूज करके कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटीजर्स अपने कैलकुलेशंस को सिंपल बना सकते हैं। आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। सी ट्राई दिस, हमने सॉल्व किए कुछ। -49 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है फर्स्ट, तो इसमें क्या किया, 49 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -50 + 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 50 - 1 49, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c हो गया, तो 18 मल्टीप्लाई बाय -50 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 50 को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 0 एज इट इज आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 18 को, तो 18 5 = 90, तो आ गया आपका -900 प्लस 18 1 = 18। अब प्लस माइनस माइनस, 900 में से 18 को माइनस किया, योर प्रोडक्ट, योर आंसर इज -882। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, इसको, इस 49 को हमको दूसरे वे में लिख देना है। यहाँ पे -49 दिया था, उसको मैंने -50 + 1 कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 50 - 1 49, -49 आएगा क्योंकि 50 इज ग्रेटर देन 1। सेम सेकंड क्वेश्चन, -25 मल्टीप्लाई बाय -31, अब इसमें 31 को ब्रेक कर दिया, 31 को कैसे ब्रेक किया, -30 प्लस -1, मतलब प्लस माइनस 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 प्लस होता है ना, तो 30 और 1 31 हो जाएगा, तो -25 मल्टीप्लाई बाय -30 प्लस -25 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो 0 आया, और 25 3 = 75, और ये दोनों नेगेटिव इंटीजर थे इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। यहाँ 25 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव, तो 25 1 = 25, तो 750 + 25 = 775। थर्ड क्वेश्चन में 70 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 70, अब इसमें क्या किया, किसको ब्रेक किया हमने, एक ब्रेक किया हुआ दिया, देखो 70 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 70 और 19 को मल्टीप्लाई किया, 70 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में देखो यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या किया हमने, 70 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, -19 मल्टीप्लाई प्लस -1, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 19 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 और 1 20, 70 मल्टीप्लाई -20, एक प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, -1400 इज द आंसर। ठीक है, तो ये ट्राई दीज आप नोटबुक में अपने आप सॉल्व कर करके करोगे, इसके अलावा मैं होमवर्क दूंगी वो आपको नोटबुक में करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, वॉच द वीडियो थॉरोली। आपको बेटा ये वीडियो 1 से 2 बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो ठीक है, और बाकी जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको नोटबुक में अपना नीटली करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, टेक केयर एंड बाय।